ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم زمین کے اندرونی حصے پر بات کریں گے۔ اندرونی حصے کے تصورات کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے زمین کی بنیادی ساخت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زلزلے، آتش فشاں اور سونامی جیسے بہت سے مظاہر کی ابتدا زمین کے اندرونی ڈھانچے سے جڑی ہوئی ہے۔ سیارہ زمین پر لوگوں کے اپنے وجود کے بارے میں سوچنے کا طریقہ ثقافتی، مذہبی اور سائنسی عقائد کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی اکثریت یہ جانتی ہے کہ وہ زمین کی سطح پر رہ رہے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک سالڈ کرہ ہے۔ یہ روزمرہ کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی روایتی سمجھ ہے۔ جیسے کہ زمین ایک سفیرائڈ ہے، اس لیے ہم اس کی اوپری سطح پر ہیں اور ہمارے نیچے اس سفیرائڈ کے اندر اس کی بہت ساری تہیں ہیں، جہاں تک انسان کا خود پہنچنا بہت مشکل ہے۔ مگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان علم حاصل کرنے کے غرض سے زمین کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکا کھود چکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے۔ زمین کے بڑے سائز اور اندرونی ساخت کی بدلتی ہوئی نوعیت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں براہ راست مشاہدات جاننا ممکن نہیں ہے۔ زمین کے مرکز تک پہنچنا انسانوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ زمین کا ریڈیس 6370 کلومیٹر ہے۔ کانکنی اور ڈرلنگ کے کاموں کے ذریعے ہم صرف چند کلومیٹر کی گہرائی تک زمین کے اندرونی حصے کا براہ راست مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ زمین کی سطح کے نیچے درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ بنیادی طور پر زمین کے اندر براہ راست مشاہدات کی حد مقرر کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن پھر بھی کچھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سورسز سے سائنسدانوں کو اس بارے میں کافی اندازہ ہے کہ زمین کا اندرونی حصہ کیسا ہے۔ آئیے اب زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں معلومات کے ذرائع کو دیکھتے ہیں، اور یہ ذرائع ہیں ڈائریکٹ سورسز اور انڈائریکٹ سورسز۔ ڈائریکٹ سورسز میں مائننگ ایریا سے پتھروں کا مشاہدہ اور آتش فشاں کا مشاہدہ شامل ہے۔ انڈائریکٹ سورسز میں درجہ حرارت کی تبدیلی کی شرح اور سطح سے اندرونی حصے کی طرف دباؤ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب یا میٹیورز کا مشاہدہ، جیسا کہ ان کا تعلق اسی قسم کے مواد سے ہے جس سے زمین بنی ہے۔ کشش ثقل کا مشاہدہ، جو قطبوں کے قریب زیادہ اور خط استوا پر کم ہے۔ زمین کی سائزمک ویوز کی پرائمری اور سیکنڈری ویوز کا مشاہدہ، جو کہ ہمیں اندرونی حصے میں مواد کی حالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں زمین کے اندرونی حصے کی ساخت کیسی ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت کو بنیادی طور پر 3 تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ کرسٹ، مانٹل اور کور ہیں۔ آئیے اب کرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ کرسٹ زمین کا سب سے بیرونی ٹھوس حصہ ہے، عام طور پر تقریباً 8 سے 40 کلومیٹر موٹا ہے۔ یہ نیچر میں ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ زمین کے والیوم کا تقریباً 1% اور زمین کی میس کا 0.5% کرسٹ سے بنا ہے۔ سمندری اور براعظمی علاقوں کے نیچے کرسٹ کی موٹائی مختلف ہوتی ہے۔ سمندری پرت براعظمی پر تقریباً 30 کلومیٹر کے مقابلے میں پتلی ہے۔ کرسٹ کے اہم اجزاء سلیکا Si اور ایلومینا Al ہیں، اور اس طرح اسے اکثر سیال کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سیال کو لیتھوسفیئر کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کرسٹ اور سب سے اوپر والے ٹھوس مانٹل پر مشتمل خطہ ہے۔ کرسٹ میں موجود مواد کی اوسط کثافت 3 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے۔ ہائیڈروسفیئر اور کرسٹ کے درمیانی وقفے کو کانراڈ ڈسکنٹینیوٹی کہا جاتا ہے۔ موہو، جسے صحیح طور پر موہر-ویکک ڈسکنٹینیوٹی کہا جاتا ہے، زمین کی کرسٹ اور مینٹل کے درمیان باؤنڈری ہے۔ اسے 1909 میں کروشین سیسمولوجسٹ اینڈریجا موہر-ویکک نے دریافت کیا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ زلزلوں کے سائزموگرام میں 2 قسم کی سائزمک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک کم گہری سلو ویو ہے جو پہلے آتی ہے، اور ایک گہری فاسٹ ویو جو بعد میں آتی ہے۔ اس نے اس کا جواز یہ دیا کہ گہری لہر کی رفتار بدل جاتی ہے
क्योंकि ये मांटल के तकरीबन नीचे पहुंच गई होती है। इसके तेज होने की वजह ये होती है कि मांटल का मवाद क्रस्ट से मुख्तलिफ होता है। ये वक्फा बर्रे आज़मों की सतह से 30 से 40 किलोमीटर नीचे होता है और समंदर के फर्श से कम गहराई में होता है। आइए अब ड्रिलिंग होल्स को देखते हैं। माहिरीन अर्जियात कई दहाइयों से मोहो पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1950 की दहाई के आखिर और 1960 की दहाई के अवाइल में प्रोजेक्ट मोहो को खातिर ख्वाह हमायत नहीं मिली और 1967 में रियासत हाय मुत्तहिदा की कांग्रेस ने इसे मनसूख कर दिया। सोवियत यूनियन की तरफ से भी कोशिशें की गईं। वो 1999 में कोशिश तर्क करने से पहले 15 सालों में दुनिया के सबसे गहरे सुराख में 12,260 मीटर की गहराई तक पहुंच गए थे। मोहो डिसकंटिन्यूटी तक पहुंचना अब भी एक अहम साइंसी हदफ है। एक तजवीज़ में खुद से नीचे ड्रिल करते हुए उतरने वाले टंगस्टन कैप्सूल पर गौर किया गया है। ख्याल ये था कि कैप्सूल रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरा होगा। ये इर्द गिर्द की चट्टानों को पिघलाने के लिए काफ़ी गर्मी देगा और कैप्सूल कशिश शकल के ज़रिए नीचे उतरता जाएगा। जापानी प्रोजेक्ट चिक्यो हैकन ने समंदर की पतली परत में सुराख करने के लिए ड्रिलिंग शॉप इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। 6 सितंबर 2012 को समंदर में खुदाई करने वाले जहाज़ चिक्यो ने शुमाल मगरबी बहरुल काहिल में जापान के जजीरा नुमा शिमोकिटा से समंदर की तह में 2111 मीटर से नीचे की गहराई में चट्टान के नमूने हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कोला सुपर डीप बोरहोल जजीरा नुमा कोला में नॉर्वे के साथ रूसी सरहद के करीब पेचिंग्स्की डिस्ट्रिक्ट में सोवियत यूनियन के साइंसी ड्रिलिंग मंसूबे का नतीजा है। इस मंसूबे में ज़मीन की परत में हर मुमकिन हद तक गहराई में सुराख करने की कोशिश की गई। ओरलमाश 4E और बाद में ओरलमाश 15,000 सीरीज़ ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल करते हुए 24 मई 1970 को ड्रिलिंग शुरू हुई और ये 1979 में तारीख का सबसे गहरा इंसानी साख्ता सुराख बन गया। 23 सेंटीमीटर कुतर के बोर होल को एक मरकजी सुराख से शाखें निकाल कर ड्रिल किया गया था। ये सुराख 1989 में 12,262 मीटर तक पहुंच गया, जो ज़मीन पर इंसान का ड्रिल किया हुआ सबसे गहरा सुराख था और 2023 तक ये बरकरार है। चीन ने ज़मीन की सतह के नीचे गहराई में ज़मीन के मुख्तलिफ जोन्स का मुताला करने की कोशिश में अपना सबसे गहरा बोर होल खोदना शुरू कर दिया है। चीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी जिनहुआ के मुताबिक बोर होल की खुदाई मंगल 30 मई 2023 को चीन के शुमाल मगरबी इलाके संक्यांग के तारीम बेसन में एक सहरा में शुरू हुई। 11,100 मीटर की प्लान्ड गहराई के साथ एक नैरो शाफ्ट 10 से ज़्यादा बर्रे आज़मी परतों में ड्रिल करेगी और ज़मीन की परत में क्रिटेशियस सिस्टम तक पहुंच जाएगी, जो कि 145 मिलियन साल पुरानी चट्टानों का सिलसिला है। इस मंसूबे के 457 दिनों में मुकम्मल होने की उम्मीद है और चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग ने इसे चीन की डीप अर्थ एक्सप्लोरेशन में एक संगे मील के तौर पर बयान किया है। आइए नाजरीन, अब ज़मीन की दूसरी परत मांटल को देखते हैं। क्रस्ट से नीचे ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को मांटल कहा जाता है। क्रस्ट और मांटल के दरमियान वक्फे को मोहरविकिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसकी मोटाई तकरीबन 2,900 किलोमीटर है। ज़मीन के हुजम का तकरीबन 84% और ज़मीन की कमियत का तकरीबन 67% मांटल पर मुश्तमल है। मांटल के अहम अज्जा सिलिकॉन और मैग्नीशियम हैं, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। इस तह की कसाफत क्रस्ट से ज़्यादा है और 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक वेरी करती है। मांटल का सबसे ऊपर का ठोस हिस्सा और पूरी क्रस्ट मिलकर एक तह बनाती है जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर के बिल्कुल नीचे मांटल में एक तह पाई जाती है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ये तह गाढ़ी मैकेनिकली तौर पर कमज़ोर और लचकदार है, जो कि मांटल के इस हिस्से को डीफॉर्म होने के काबिल बनाती है। एस्थेनोस्फीयर मैग्मा का बुनियादी ज़रिया है और ये वो तह है जिसके ऊपर लिथोस्फीयर प्लेटें या बर्रे आज़मी प्लेटें हरकत करती हैं।
इसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ऊपरी मांटल और निचले मांटल के दरमियान वक्फे को रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मांटल का वो हिस्सा जो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बिल्कुल नीचे है लेकिन कोर के ऊपर है, इसे मीजोस्फीयर कहा जाता है। आइए नाजरीन, अब ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह कोर को देखते हैं। ये ज़मीन के मरकज़ के गिर्द सबसे अंदरूनी तह है। कोर और मांटल के दरमियान गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ये बुनियादी तौर पर लोहे और निकल पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे NiFe भी कहा जाता है। कोर ज़मीन के हुजम का तकरीबन 15% और ज़मीन की कमियत का 32.5% है। कोर ज़मीन की सबसे घनी तह है जिसकी कसाफत 9.5 से 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, अंदरूनी और बैरूनी कोर। अंदरूनी कोर ठोस हालत में है और बैरूनी कोर माया हालत या नीम माया हालत में है। ऊपरी कोर और निचली कोर के दरमियान वक्फे को लीमैन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। बैरिस्फीयर का लफ्ज़ कभी कभी ज़मीन के निचले हिस्से या कभी पूरे अंदरूनी हिस्से का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको बताया है कि अंदरूनी कोर सॉलिड और बैरूनी कोर लिक्विड होती है, तो यहाँ हम आपको एक दिलचस्प फैक्ट से आगाह करते हैं। वो ये है कि बैरूनी लिक्विड कोर अंदरूनी सॉलिड कोर के इर्द गिर्द घूमती है। इस रेवोल्यूशन की वजह से ज़मीन पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो कि हमें सूरज की मुज़र शुआओं या सोलर विंड्स से महफूज रखती है और हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखती है। अगर ये फील्ड ना हो तो हमारे माहौल का तवाज़न बिगड़ जाएगा और ज़मीन सूरज के मुज़र शुआओं से झुलस जाएगी। आइए नाजरीन, अब ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर और प्रेशर देखते हैं। आइए नाजरीन, अब पहले टेम्परेचर को देखते हैं। माइंस और गहरे कुओं में गहराई में इजाफे के साथ दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से फूटने वाले पिघले हुए लावे के साथ ये शवाहद इस बात की तायद करते हैं कि ज़मीन के मरकज़ की तरफ दर्जा हरारत बढ़ता है। मुख्तलिफ मुशाहिदात से पता चलता है कि दर्जा हरारत में इजाफे की शरह सतह से ज़मीन के मरकज़ की तरफ यकसा नहीं है। ये कुछ जगहों पर ज़्यादा और दूसरी जगहों पर कम है। शुरू में दर्जा हरारत में इजाफे की ये शरह गहराई में हर 32 मीटर के इजाफे के लिए औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बालाई 100 किलोमीटर में दर्जा हरारत में इजाफा 12 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ी किलोमीटर है और अगले 300 किलोमीटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ी किलोमीटर है। लेकिन मज़ीद गहराई में जाने से ये शरह महज 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ी किलोमीटर रह जाती है। ज़मीन के इस दर्जा हरारत के तब्दील होने को जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। मरकज़ में दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड और 5000 सेंटीग्रेड के दरमियान है। ये ज़्यादा दबाव वाली हालतों में कीमियाई रद्द अमल की वजह से ज़्यादा हो सकता है। इतने ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़मीन के ऊपर वाले मवाद के भारी दबाव की वजह से ज़मीन के मरकज़ में मौजूद मादे ठोस हालत में होते हैं। तो आइए नाजरीन, अब ज़मीन के प्रेशर को देखते हैं। दर्जा हरारत की तरह प्रेशर भी सतह से ज़मीन के मरकज़ की तरफ बढ़ता है। ये चट्टानों जैसे भारी मवाद के बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक गहरे हिस्सों में दबाव बहुत ज़्यादा है, जो सतह समंदर पर फ़िज़ा के दबाव से तकरीबन 3 से 4 मिलियन गुना ज़्यादा होता है। ज़्यादा दर्जा हरारत पर नीचे का मवाद ज़मीन के दरमियानी हिस्से की तरफ पिघल जाता है, लेकिन शदीद दबाव की वजह से ये पिघला हुआ मवाद ठोस की खसूसियात हासिल कर लेता है और प्लास्टिक स्टेट में तब्दील हो जाता है। तो नाजरीन, ये मालूमात थी ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़मीन की इस मालूमाती वीडियो के बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।